Assalamu alaikum, dear students, and welcome to the online lecture series of routing and switching. So, today's content we are going to cover is navigating the iOS. iOS stands for Internet Work Operating System. In the previous class, we have studied about different levels of iOS. हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा उसके कितने लेवल्स होते हैं वी हैव स्टडीड अबाउट हार्डवेयर वी हैव स्टडीड अबाउट कर्नल वी हैव स्टडीड अबाउट शेल कमांड्स and the last thing which we were discussing in the previous class was iOS modes that I was explaining कि हमारे पास iOS में तीन तरह के modes होते हैं. We have user exec mode and you have privileged exec mode. इन दोनों का difference हम लोगों ने last class में समझा था. So now we are going to the next content that is navigating between the iOS modes. We have four types of modes in iOS. The first one is user mode, the second one is privileged mode, and the third one is global mode and configuration mode. ठीक है, तो एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं और इनका डिफरेंस देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, जो यूज़र मोड है, यूज़र मोड इज़ द मोड वी द यूज़र्स यूज़. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट प्रोवाइड्स डिफरेंट फंक्शनैलिटी, राइट? तो बीइंग अ यूज़र the resources, the functionalities, the features we can use basically consist of the user mode. जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये चार तरह के मोड्स प्रोवाइड करता है. यूज़र मोड में वो सारी फैसिलिटीज़ फीचर्स गिवन होते हैं जिसमें यूज़र जो है वो user can interact, user can use it, user can explore the features and so on. ठीक है, इसके बाद जो प्रिविलेज्ड मोड होता है, प्रिविलेज्ड मोड इज़ अ काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मोड. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन पीपल administer the things, control the things, right? They have the control. तो इसी तरीके से privileged mode में हमारे पास हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था कि privileged mode में हमारे पास चीज़ों को monitor करने की responsibility होती है. We can change in the nature, we can change in the commands, we can do change in the execution, configuration, management and all. ठीक है, तो privilege mode में basically हमारे पास ये control आ जाता है to administer the things. ठीक है, और third one is global. ठीक है, global में basically you have the public responsibilities, publicly shown features की जो facility होती है वो होती है आपके पास. And the last one is configuration mode. इसमें आप you can do all the configurations, settings and updations and all. ठीक है, तो ये configuration mode is all about the configuration, is all about the changes, is all about the uh, what we can say, you can do all these changes you want to being. And it's something like you have a privilege mode. आपके पास ये privilege है, आपके पास ये facility है, आपके पास ये control है that you can configure and you can do the changes you want to be changed in the system. ठीक है, so you have that you have that perspective, you have that responsibility, or you have that control. Okay, so basically these are the four types of iOS modes. And the iOS keep on rotating from user mode to privileged mode to global and to configuration. Okay, whenever you do the changes in iOS, at that time you are on the configuration mode. When you are using the facilities which are provided to the user, when you are using that facilities, तो उस वक्त आप जो है वो यूज़र मोड में होते हुए एंड सो ऑन. ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ बेसिक iOS कमांड्स स्ट्रक्चर्स. स्टूडेंट्स, अब हम लोग iOS की कमांड्स को स्टडी करेंगे यहाँ पे. तो आप सबसे पहले देख सकते हो कि यू हैव दिस डायग्राम हियर. इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी है. द फर्स्ट थिंग इज़ दिस, यू मतलब कि आपका जो एड्रेस है यहाँ पे, आपका जो फिज़िकल एड्रेस है आपके सिस्टम का वो यहाँ पे आ जाएगा. एंड यू हैव टू पिंग मीन्स यू हैव टू सेंड द मैसेज, राइट? सो हेयर इज़ द प्रॉम्प्ट, हेयर इज़ द कमांड, हेयर इज़ द स्पेस एंड हेयर इज़ द कीवर्ड और आर्ग्यूमेंट. यानी कि ये उन्होंने बताया हुआ है कि कमांड को लिखने का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास. ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग इज़ द प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट इज़ द बेसिकली जैसे हम लोग अपनी लिखते नहीं हैं
अपनी प्रोग्रामिंग में वी राइट द स्टेटमेंट्स हैश इंक्लूड दिस एंड दिस, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इज समथिंग दैट रिमेन्स देयर एवरी टाइम विद द कमांड, दैट डज नॉट चेंज। उसके बाद कमांड वाली चीज़ दैट जो है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। देन यू हैव स्पेस। स्पेस का मतलब ये है कि तो जो उसका फॉर्मेट है ना वो वाली स्पेस, ठीक है। ये स्पेस इट्सेल्फ कोई चीज़ नहीं है। स्पेस मीन्स यू हैव टू टेक अ स्पेस, यू हैव टू गिव सम स्पेस, ठीक है। उसके बाद यू हैव कीवर्ड और आर्ग्यूमेंट। आपकी जो भी कमांड होती है उसका जो कीवर्ड होता है, जो आर्ग्यूमेंट होता है, वो इधर लास्ट में आ जाता है। तो ठीक है, ये कमांड को, किसी भी कमांड को लिखने का तरीका बताया गया है, ठीक है। जैसे हम कहते नहीं है कि सिंटैक्स किसी चीज़ का बताना, तो ये बेसिकली सिंटैक्स बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद वी हैव सीन द सिंटैक्स। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, पिंग कमांड के लिए, पिंग इज़ अ कमांड, ठीक है। तो कमांड के लिए दिस इज़ द प्रॉम्प्ट, दिस इज़ द कमांड, दिस इज़ द स्पेस एंड दिस इज़ द व्हाट वी से द कीवर्ड और द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले देखा था। स्विच यहाँ पे क्या है हमारे पास, स्विच हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है। उसके बाद पिंग हमारे पास यहाँ पे क्या है, कमांड है, क्योंकि ये कमांड पिंग का हमने सिंटैक्स लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपका क्या है, आईपी एड्रेस, स्पेस दी गई, ठीक है। पिंग और आईपी एड्रेस के दरमियान स्पेस है, तो स्पेस दी गई। और उसके बाद आपकी जो भी आपकी कमांड होगी वो बेसिकली यहाँ पे लिख दी जाएगी, ठीक है। जो आर्ग्यूमेंट होगा आपका वो यहाँ लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हमने आईपी एड्रेस लिखना है, दिस इज बेसिकली द आईपी एड्रेस, ठीक है। द कमांड इज पिंग एंड द यूजर डिफाइंड आर्ग्यूमेंट इज द 10.10.5, यानी कि आर्ग्यूमेंट जो बेसिकली जो हमारा है दैट इज द आईपी एड्रेस, और हमारी कमांड कौन सी है, पिंग। सिमिलरली अगर हम ट्रेस रूट की कमांड लिखी जाए, ट्रेस रूट में क्या होगा,